Namaskar. You all have done your prelims examination today. I am here to discuss what was required to be attempted in the questions of geography, environment ecology, and of course map based with some economic geography questions. Hope these key is going to help you in charting out your strategy of proceeding further. Let us get going with the question paper. I have got set D with me right now. Okay, so question number 1, as I said, we are having set D in front of us. So question number 1, of course, you can count it to be question of economics, but I take it as question of economic geography because any case we deal with it. So we have got two statements given to us. The MSMEs Act 2006. You have been given the range, investment range that is related to MSMEs, and I think we can easily justify that this is going to be the correct statement. And all the bank loans to MSMEs are provided under priority sector. This statement is also absolutely correct. And thus, for question 1 in set D, we are dealing up with set D, so I've written it. For those who have taken it now, it is both these statements that are going to be correct. So your answer should be C. In this particular examination, we are somewhere back to a decade older pattern of the examination. जो पूरा YouTube चैनल भरा हुआ था आपका एलिमिनेशन टेक्निक से, ये टेक्निक अपनाओ, वो टेक्निक अपनाओ, सब हो गया जीरो. NCERT बेस्ड एंड एब्सोल्युटली करंट ओरिएंटेड पेपर, जिसमें पूरा का पूरा फॉर्मेट आ गया जो 10 साल पहले का पैटर्न रहा यूपीएससी एग्जामिनेशन में. तो आपको थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबिलिटी जिसके बारे में हम हमेशा एडवोकेट करते हैं वो लेना बहुत जरूरी है, और वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन भी है. अच्छा, इसके बाद हम स्क्रॉल अप करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हम कुछ हद तक ज्योग्राफिकल डोमेन का क्वेश्चन कह सकते हैं with a current map oriented, या आप कैसा भी क्वेश्चन जस्टिफाई करें. The question was asking us to which of the following countries has been suffering from a decade of civic strife and food shortage. मेरे ख्याल से बहुत आसानी से ये वाला आंसर हम सबके लिए सोमालिया निकल कर आ सकता है. यू कैन रेफर इट एज करंट अफेयर्स, यू कैन रेफर इट एज मैप बेस्ड क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से बिल्कुल थ्रो अवे मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है. आयरनी है, Somalia is the country that has been consistent representative of what we identify as food, hunger, insecurity of the food, and etc. So we can take that into consideration as a good case altogether when it comes on to the study relating to this particular map-based question. आप इसको ऐसे करके, okay, scrolling on to question number 9, नागोया प्रोटोकॉल से related question है, और मेरे ख्याल से ये question बड़े ही आराम से हमें हमारे अप्रोच ऑफ स्टडी रिलेटिंग टू एनवायरमेंट इकोलॉजी से जस्टिफाई करेगा. हम मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में भी बड़े ही डिटेल्स में नागोया प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं. इंडियन कंटेक्स्ट का पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नागोया प्रोटोकॉल. इट्स एन एब्सोल्यूट करेक्ट स्टेटमेंट. एंड व्हेन आई टेक अप सीबीडी, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके डोमेन में, and the second statement takes into account the biodiversity management committee have important functions in determining excess and benefit sharing, including power to levy fees on the biological resources within its jurisdiction. C, bilkul ekdam factual kind of a question. I don't think there is any debate that is required to be applied. जानते हैं कर पाएंगे, नहीं जानते हैं नहीं कर पाएंगे. Scrolling on further, quickly getting onto the page with which we can associate our answer. So I am getting on to question number 11 now. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. It is considered the following. We have been given countries like Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, and Romania. And the question is asking how many of these countries share land border with Ukraine. अच्छा, क्वेश्चन का नेचर देखिए, काफी डिफरेंट है. यहाँ पर आपके पास चॉइसेस ये वाली नहीं है कि आपको कंट्रीज के नाम सेलेक्ट आउट करने हैं. यहाँ पर आपसे कितने पेयर्स हैं जो करेक्ट बताए गए. तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैप आप अपने सामने ओपन कर सकते हैं. हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते आपका, इसलिए मैप नहीं ओपन कर रहे. आई हैव गॉट ओनली 2 countries with this list that shares boundary with Ukraine, हंगरी एंड रोमेनिया. बहुत सारे स्टूडेंट्स बुल्गारिया में कंफ्यूज हुए हैं.
बुल्गारिया का बाउंड्री लैंड फ्रंटियर यूक्रेन के साथ नहीं जाता है, तो only 2 will be the answer to this particular question. Hardcore map based geography question is A. I take reference of question number 12. हम बड़े लगातार आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज में बताते रहे, फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया आपके प्रीलिम्स के सिलेबस का पार्ट है। क्वेश्चन इस डोमेन में बहुत कम पूछे गए पिछले 5-6 सालों में, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इग्नोर आउट कर दें, और उसके बड़े अच्छे एविडेंसेस अब हमारे सामने आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। टू सम एक्सटेंट सम ऑफ द स्टेटमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, नहीं तो आप कोई भी वेरा टिपिकल सा क्लाइमेटोलॉजी का टेक्स्ट बुक सविंद्र सिंह एक्सेट्रा ले लें, इंसुलेशन का चैप्टर, वहां से भी आपको ये फैक्ट्स बड़े आराम से मिल जाएंगी। स्टेटमेंट 1 इज रीडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट पोल। हम कहेंगे 10 टाइम्स अपने आप में थोड़ा सा गलत एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी वेरी क्लियरली से डिफरेंस तो है, बट ज्यादा 2.5-3% का डिफरेंस होगा, 10 टाइम्स थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट हो गया, तो दिस इज रॉन्ग। Then comes in infrared rays constitute roughly 2/3 of insolation. Definitely not. Electromagnetic spectrum का काफी individual visible spectrum, infrared, ultraviolet. There are many of the constituents. This is also wrong. I go to D. Infrared waves are the part of visible spectrum. मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही बड़ी आसानी से ही समझ में आ रहा है कि this statement is incorrect. So correct statement, that is which of the given statement is correct, is C. Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in lower atmosphere. We all are aware of the fact 99% plus of water vapor marks up its concentration in troposphere. We do have trace amount of it via stratosphere to mesosphere, where we take into consideration noctilucent clouds. We have been taking up the reference of this in our study. Okay, then comes on to question number 13. बिल्कुल एकदम हार्डकोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने कहा 10 साल पुराना ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बच्चों ध्यान से देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आप कहीं से भी रूल आउट नहीं कर सकते हो, और वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी को टेम करने का सबसे अच्छा तरीका है बी प्रिपेयर्ड विद द बेसिक टेक्स्ट। एनसीईआरटी एकदम बम्बार्डिंग रेफरेंस से सामने आई है दोबारा से, कई सारे क्वेश्चंस एकदम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो स्टेटमेंट्स दोनों में आप जरा चॉइसेस को अगर स्टडी करें, दोनों ही करेक्ट हैं, और वन स्टेटमेंट जो है वो 2 को एक्सप्लेन कर रहा है। ये 10 साल पहले के करीब क्वेश्चन आता था असर्शन एंड रीजनिंग, ये उसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। दूसरा कहता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आता। तीसरा कहता है 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट रॉन्ग, एंड चौथा कहता है 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ये वाले क्वेश्चंस काफी सारे देखने को मिले इस बार एग्जामिनेशन में। देखते हैं जरा ध्यान से। स्टेटमेंट 1 कहता है सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर सिर्फ रेन फॉरेस्ट लिखा होता तो एक पॉइंट ऑफ डाउट आ सकता था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सॉइल न्यूट्रिएंट रिच नहीं रह पाते बिकॉज दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू इमेंस लीचिंग। ये स्टेटमेंट अपने आप में हो गया गलत। अब आ जाओ दूसरे स्टेटमेंट में, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल टू डीकम्पोज क्विकली। ऑफ कोर्स ह्यूमिफिकेशन नहीं होता, ये तो गलत है ना, ह्यूमिफिकेशन तो होता है, लेकिन लीचिंग की वजह से वो रह नहीं पाता जेनेटिक होराइजन ए में, एंड दैट इज द रीजन वी डेवलप व्हाट इज कॉल्ड excessive organic double O genetic horizon. So nutshell, what will be the answer of this question? It should be D. 1 is incorrect and second statement is correct. So this is how you will take up this particular answer. चलो 14 क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन एनसीईआरटी का अगर आप इंसोलेशन और टेम्परेचर का चैप्टर देखोगे आपको वहां से बहुत अच्छा लीड मिलेगा। हम लगातार आपको बोलते आते हैं, तैयारी करते हैं जब हम किसी भी एग्जामिनेशन की, तो उसमें जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसका रेफरेंस लेना बहुत जरूरी होता है, और यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी से ज्यादा बेसिक फाउंडेशन टेक्स्ट देने वाली और कोई किताब नहीं है, और 2023 का प्रीलिम्स उसको अगेन प्रूव कर रहा है। ओके, 14 क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सो वी हैव टू टेक अप द रेफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कंट्रास्ट, इट इज अबाउट कंट्रास्ट दैट इज बीइंग टॉक्ड, is greater in continents and ocean
is greater between continent and ocean during summers than in winters. Logical है, टेम्परेचर कंट्रास्ट लैंड और वाटर में तो रहेगा ही, डेफिनेटली रहेगा. समर्स में ज्यादा होने का रीजन ये है कि समर्स में मुझे कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स और ओपन वाटर के बीच में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिख सकता है. विंटर्स में ज्यादा 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीचों बीच रहता है. तो दिस स्टेटमेंट गोज करेक्ट. The specific heat of water is more than that of land surface. This is also correct and quite appropriately explains statement 1. So I'll go in for A as the answer to this particular question. ध्यान रखेंगे, water maintains its temperature because of its three characteristics. It is being translucent, it has got mobility and it has got high specific heat. और winters के मुकाबले में summers में टेम्परेचर कंट्रास्ट का ज्यादा होना बड़ा ही लाजमी टाइप का पॉइंट है. फर्स्ट 15 इज हार्डकोर सेस्मोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन. पढ़ते हैं जरा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन. इन सेस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स. पी को प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फास्टेस्ट मूविंग है. इनकी क्रस्टल स्ट्रेटा से मूविंग वेलोसिटी 7 किलोमीटर पर सेकेंड हो सकती है. That is the reason they are first to be recorded on seismograph by default. S waves की propagation velocity 3.5 kilometers per second होती है, आधी velocity to P waves. तो पहला statement हुआ correct. दूसरे के बारे में आते हैं. In P waves, the individual particles vibrates to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S wave, the particle vibrates up and down. We all are aware of the fact that P is also called compressional body waves. And S is also called distortional body waves, and it basically is coming up from the absolute basic elementary characteristics of both the body waves. Both these statements are correct. Answer to the question is C. So ये आ गया एकदम हार्डकोर जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया. क्वेश्चन नंबर 16 को हम बिल्कुल एब्सोल्युटली ज्योग्राफी के डोमेन का नहीं कह सकते, उसको आप एनवायरमेंट से भी रिलेट कर लो, आप उसको इकोनॉमिक से भी रिलेट कर लो. सो आई पुट इट ऑन अ सेफर बेट एंड आई से इट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन, जिसको हम एनवायरमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया के बारे में पूछ रहा है. तो आई एज इकोनॉमिक ज्योग्राफर कैन हैंडल इट. सो व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, थर्मल पावर प्लांट्स का जो फंक्शनिंग डोमेन इंडिया में है उसका मेजर डिपेंडेंसी जो है वो फ्रेश वाटर पर है. सो नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, बेसिकली को आप जस्टिफाई कर सकते हो एज अ करेक्ट स्टेटमेंट. उसके बाद है नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट. ये अपने आप में थोड़ा ऐसा डिबेटेबल स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट का स्टैब्लिशमेंट कंट्री वाइड है, वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड, और सबसे बड़ा पॉइंट है कोल ओरिएंटेड है, और जितने मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो एकदम हार्ड कोर ड्राउट प्रोन इंटीरियर्स में. सो आई फाइंड इट टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नन ऑफ देम आर प्राइवेटली ओन्ड. Not getting onto the data facts in much details, but even if I go very superficial, of the operational thermal power plant, at least near 43 to 45% of the thermal power plants involves privately owned plants as well. So answer to this question should be only one, that is none of them uses seawater is the correct expression. Okay, quickly scrolling the pages and getting onto the geography questions so that we are taking up the questions on the correct front. So I have to go on to question number 18. Question number 18 पर आते हैं. फिर यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा environment से, थोड़ा सा physical geography से related question बता सकते हो. पढ़ते हैं इसको. Consider the following activities. Spreading finally ground basalt rock of farmland extensively, increasing the alkaline of oceans by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into the abandoned subterranean mines in form of carbonated water. How many of the above activities are often considered and discussed for the carbon capture or sequestration? अगर आप एनवायरमेंट ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करते हो, जो आईपीसीसी रिपोर्ट में जस्टिफाइड है, उसमें ये तीनों एक्टिविटीज बहुत क्लियरली जस्टिफाइड है. आप लोग प्लीज रिकॉल करें, जब हम आईपीसीसी डिस्कस करते हैं, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम एक इंफोग्राफिक लेकर समझने की कोशिश करते हैं. उसमें ये तीनों के तीनों मेथड्स एप्लीकेबल हैं. All the three should be the correct answer to this.
I put it to environment geography क्योंकि आप इसको बड़े आराम से क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएट कर सकते हो. ओके अब इसके बाद थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आगे बढ़ेंगे एंड गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26 क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हो. एक्चुअल क्वेश्चन है, वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम हार्डकोर ज्योग्राफी तो नहीं है, बट फिर भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. बिल्कुल करेक्ट है. We all are aware of the fact that Switzerland incorporate among the list of the countries that have got very high income levels. It is a developed economy, the mountainous alpine state. दूसरा statement कह रहा है Switzerland has second largest gold reserve in the world. नहीं, जब gold reserves की बात आती है then we take up the countries like South Africa, Russia, etc. तो I take this question to be giving me C as the answer. Statement 1 is correct, but statement 2 is इनकरेक्ट, इट्स रॉन्ग. ज्योग्राफी के क्वेश्चन की तरफ आगे स्क्रॉल करेंगे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा लंबा ट्रांजिट लेना पड़ेगा एंड आई कैन इजिली टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40. सो गोइंग ऑन देयर, एनवायरमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो हमने जैसे आपको बताया कुल 37 क्वेश्चंस हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को आप ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, टू सम एक्सटेंट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी रिलेट कर सकते हो. बिल्कुल जो हार्डकोर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली हम डील अप नहीं कर रहे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पोल्यूशन. हम लगातार अपने ज्योग्राफिकल स्टडी में मर्करी पोल्यूशन के लिए लोअर कोर्स ऑफ रिवर अमेजन की बात करते हैं, मिनीमाता बे की बात करते हैं. अगर आप वाले लॉजिक को भी दिमाग में रखते तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे. जब आप रीड आउट करते हैं गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन वर्ल्ड. बिल्कुल करेक्ट है. हमने अभी अभी आपको रेफरेंस बताया, मोनोस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी. Coal based thermal power plant causes mercury pollution. Minamata Bay is a very good example of this particular expression. There is no known safe level of exposure to mercury. थोड़ा सा debatable कह सकते हैं, but I think this statement also goes as correct. So all of them I can consider to be correct for this particular question. C will be your answer when it comes to mercury pollution. Question number 40 भी environment geography से ही related है. इंडिया ने इसको मोबिलाइज कर रहा है बड़ी ही रिसेंटली, तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो एज एन एग्जांपल ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन ऑल्सो. सो ग्रीन हाइड्रोजन, पहला स्टेटमेंट कहता है इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली. ये टर्म अपने आप ही स्टेटमेंट को गलत बता दे रहा है. उसके बाद आप कहते हैं इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बिकॉज इट इज ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस. ये बिल्कुल सही है. And it can be used in hydrogen fuel cell to run vehicles. This is also correct, and that is the reason only two are correct. अब जो एक कन्वेंशनल हमारी प्रैक्टिस रही है प्रीलिम्स के एमसीक्यूज करने की, ओनली टू का मतलब हो जाता है कि चॉइस नंबर 2. यहां पर है कि 2 स्टेटमेंट 3 में से करेक्ट हैं, तो काफी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया. तो ये जस्टिफाई करता है कि यूपीएससी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को टेम नहीं किया जा सकता. सिंपल लॉजिक है, बी वेल प्रिपेयर्ड. ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टू द अदर ज्योग्राफी क्वेश्चंस. आई एम नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51. सो इन बिटवीन ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हैं, तो हम पेज नंबर 27 पर पहुंच गए. अब बड़े इंटरेस्टिंगली मैप बेस्ड बताओ, फिजिकल ज्योग्राफी बेस्ड बताओ, एकदम लगातार क्वेश्चन. और मेरे स्टूडेंट्स में से किसी ने भी इसको गलत किया है तो जो हमेशा कहते हैं वर्चुअल थप्पड़. आजा चलो क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुंचे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ज्योग्राफी का है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े आराम से पता चलता है, ध्यान से देखते जाओ. झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक, आंख बंद करो, करेक्ट स्टेटमेंट. कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, गलत. कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा के बीच में पड़ता है कोलेरू लेक. कृष्णा रिवर कोलेरू लेक को फीड नहीं करता. इट्स अ डिफरेंट थिंग कि कोलेरू लेक को हमने नेशनल वाटरवे 4 जो कि काकीनाडा से पुदुचेरी तक एक्सटेंडेड है उसमें लिंकअप करा है गोदावरी, कोलेरू एंड कृष्णा से. सो दिस स्टेटमेंट गोज रॉन्ग. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट meandering of Gandak river forms Karwar lake, Kanwar lake, I'm sorry, it is actually the Oxbow lake that is correlated with river Gandak. No need for saying Gandak is the tributary of river Ganga and it is one of the principal Himalayan tributaries of it. So 1 and 3, so 2 only are correct. So answer to this particular question should be B.
ओके, अब आ जाओ जरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। ये भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से मरी टाइम रेवोल्यूशन ज्योग्राफी मेंस की स्टडी से आप इसको बड़े आराम से निकालते हो। कामराजर पोर्ट, इट इज बीन रीनेम्ड एन्नोर पोर्ट, और जैसे ही आप एन्नोर पोर्ट की बात करते हो, फर्स्ट मेजर पोर्ट रजिस्टर्ड एज कंपनी, फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, करेक्ट है। मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात इज लार्जली प्राइवेटली ओन्ड। अब आज की डेट में तो कंट्रोवर्शियल, जो गवर्नमेंट डेफिनेटली डिनाई कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर अदानी रेफरेंस। सो ये अदानी हेल्ड पोर्ट है। यस, इट इज द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड। एंड विशाखापट्टनम पोर्ट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। विशाखापट्टनम वाइजैग is the largest container port of India in East Coast। अब यहां पर जो मेरे को पेयर दिया गया है वो कह रहा है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, तो याद करके देखेंगे इंडिया का सिर्फ एक पोर्ट आता है अमंग द टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवा शेवा, नवी मुंबई। इसका मतलब हो गया 2, 1 and 2 करेक्ट है, तीसरा पेयर गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, that is only 2 pairs। This will be our question that is directly coming from geography, और कहीं ना कहीं geography ऑप्शनल से भी रिलेटेड है, और मेरे ख्याल से ऑप्शनल के स्टूडेंट्स इसको अग्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 एकदम थंपिंग एग्जांपल है रीस्टैब्लिशिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, जिसके हम बहुत मैसिव सपोर्टर हैं। आपको एनसीईआरटी इसकी इतनी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट रेफरेंसेस पर जज आउट कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इज प्रूविंग हियर। एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन के चैप्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड आया हुआ है। महुआ एंड टीक तो आंख बंद करो, डेसिडुअस ट्रीज है, क्योंकि डेसिडुअस ट्रीज में ड्राई एंड मॉइस्ट का डिमार्केशन नहीं दिया, तो सेफली ये दोनों हो गए। जैक फ्रूट की जब बात करते हैं तो दैट फॉल्स इनटू द एवरग्रीन कैटेगरी ऑफ द वेजिटेशन, तो अगेन यहां पर आंसर हो जाएगा ओनली 2। नेचुरल वेजिटेशन के परव्यू में लेंगे तो इट्स महुआ एंड टीक, डेसिडुअस वैरायटी है। साल, टीक, सैंडलवुड सबको डेसिडुअस में ही तो डालते हैं। जब आप साल और टीक को डिस्टिंग्विश करते हो तो साल को मॉइस्ट में ले जाते हो, टीक को ड्राई में ले जाते हो, महुआ भी ड्राई में जाता है, पर ऐसा चॉइस तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, और एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट वाइज दिया है, नोटिस करो उसको। इसके बाद आगे बढ़े तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग क्वेश्चन है, इकोनॉमिक, करेंट, सारी चीजों को कंबाइन ऑन कर ले। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर से भी ले सकते हो, और एक जनरल करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज मोर अरेबल लैंड देन चाइना, दिस इज करेक्ट, दो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ चाइना, बट चाइना का मेजर सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट जो है वो अनअरेबल कैटेगरी में आता है, नॉन कल्टिवेबल कैटेगरी में आता है, और इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स टोटल एरिया दैट इज कल्टिवेबल, जो आप लैंड केपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में जज आउट करते हो, तो दिस इज कमिंग आउट एज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया कंपेयर टू चाइना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का डेटा टेबल देखें तो वी टेक अप रेफरेंस ऑफ some 48% of the total cultivated area of our country as irrigated today, एंड चाइना का कुछ 40-41% के करीब बनता है, तो इस स्टेटमेंट को भी आप करेक्ट कर लें। लेकिन जो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है विच सेज एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया इज हायर, ये गलत हो गया। इंडिया का प्रोडक्टिविटी लेवल अभी भी आप 3500-3000 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर में लेते हो, और चाइना का चला जाता है 7000 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर में, तो तीसरा गलत हो गया, तो आंसर आपका फिर से हो गया ओनली 2 ऑफ देम आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, मैनग्रोव्स, फिजिकल ज्योग्राफी से पिकअप कर लो या एनवायरमेंट इकोलॉजी से कर लो, आपकी चॉइस। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ये रीड करते हैं, भितरकनिका, मराकनम, नावपादा, रन ऑफ कच्छ, ये सब के सब सॉल्ट मार्शेस हैं, मार्श लैंड है, विच आर कोरिलेटेड विद व्हाट वी रेफर एज सलीनास, सोलन चाक्स, है ना, वी रिलेट देयर। अब ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हैं, रिपीटेड फॉल ऑफ सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड, तो जो रेपिटेटिव चेंज इन द मीन सी लेवल है, राइजिंग शोर लाइन जिसको हम एडवांसिंग शोर लाइन कहते हैं, फिर राइज इन मीन सी लेवल, फिर रिट्रीट हुआ, दैट विल गो विद रन ऑफ कच्छ है। तो ये सारे सॉल्ट मार्शेस, इन सब के सबको आप
हेलोमॉर्फिक सॉइल कैटेगरी, इसलिए हमने सलीनास टर्म लिखा, फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हो, बट इसका आंसर रन ऑफ कच्छ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, ये एक इंपॉर्टेंट डोमेन है टाइटेनियम से रिलेटेड, और पीआईबी के प्रेस रिलीज से आप इसको रिलेट आउट कर सकते हो। Ilmenite and rutile abundantly variable in certain coastal tract of India, rich source of titanium. इंडिया ईयरबुक में भी इसका मेंशन दिखता है, और पीआईबी प्रेस रिलीज, तो आप इसको मिनरल रिसोर्स के साथ ले लो या आप इसको करंट के साथ ले लो, दैट इज योर चॉइस। अब ये भी आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कोरिलेट करेगा। मैप सेशंस लिया था प्रीलिम से पहले, वहां पर हमने इसके बारे में बात की थी, ये क्वेश्चन वहां से आ रहा है। About 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacturing of batteries, electric vehicle, is coming from Democratic Republic of Congo. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया ना, कॉन्गो बेसिन का भी थोड़ी देर बाद पहुंच रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट इन वर्ल्ड, एंड दैट इज द रीजन नेविगेबिलिटी ऑफ रिवर कॉन्गो इज बीन टेकन सो दैट एक्सेसिबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड। ये मैप जब हम अफ्रीका का मैप समझा रहे थे तब हमने इसके बारे में बात करी थी। न्यूज़पेपर में इसका आना इसलिए प्रोमिनेंट हुआ था कि कॉन्गो में काफी सारा चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ इट एंड एक्सेट्रा। चलिए आ गया क्वेश्चन जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 58, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डिबेट ही नहीं है इसमें। इस मैप बेस्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब आपको 4 कंट्री के नाम दिए हुए हैं, एक बड़ा बेसिक मैप नॉलेज चाहिए एंड यू आर डन विद इट। कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान एंड युगांडा। आप अपने आप से नोटिस करो, नाइजीरिया गया अपर गिनिया में, साउथ सुडान और युगांडा को आप सवाना में लेकर चलते हो, और कॉन्गो बेसिन आता है इक्वेटोरियल सेंट्रल बेल्ट में। तो मेरे ख्याल बड़े आराम से चॉइस क्लियर आउट हो जाती है, कैमरून। कैमरून, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कैन बी इजिली इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्गो बेसिन। सो 58 का आंसर होना चाहिए ए। 59, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इंटरेस्टिंग वन है। एक नाम थोड़ा सा डेविएटिव वर्जन में दे दिया स्टेटमेंट 2 में, बट मेरे ख्याल से मैनेजेबल है। अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यन एंड सह्याद्री, पॉसिबल ही नहीं है। सह्याद्री का मतलब है वेस्टर्न घाट, विंध्यन का मतलब है ओल्ड ब्लॉक माउंटेन, और अमरकंटक जो है वो सतपुरा का एक पीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अच्छा, बिलिंगिराजन हिल कंस्टिट्यूट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा, गलत हो गया क्योंकि दिस फॉल्स समवेयर इन द इंटर स्टेट बाउंड्री ऑफ केरला एंड कर्नाटका। मतलब अगर मुझे इसको किसी का पार्ट लेना है तो मुझे इसको वेस्टर्न घाट का पार्ट लेना चाहिए, सतपुरा का तो नहीं हो सकता, तो काट दो इसको भी। बेसिकली इट गोज विद द एक्सटेंशन ऑफ, जो आप पढ़ते हो ना आयरन ओर के लिए, बाबा बूदन हिल्स, उसी का सदर्न एक्सटेंशन में आ रहा है, तो ये गलत हो गया। शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। आपने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में स्टडी करी है हमारे साथ। जब आप प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करते हो और आप बात करते हो बायोस्फेरिक रिजर्व्स की, तो शेषाचलम कहां पर फिट इन होता है? ईस्टर्न घाट्स में फिट इन होता है, वेस्टर्न घाट्स में तो बिल्कुल ही गलत है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नन ऑफ देम। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डी आंसर हो गया, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। Question number 60, I'll definitely say that we do deal up with infrastructure in roadways in our economic geography means, पर यहाँ पर जरा थोड़ा सा फैक्चुअल एंड अटैचमेंट इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल आराम से वहां से सॉल्व होता है, पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो सॉल्व हो सकता है। ध्यान से देखो, स्टेटमेंट 1 कह रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ टू सूरत, गलत हो गया ना। जब आप इसको पोरबंदर और सिलचर से कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस गलत हो गए, तो इसको कर दो कट। जब ट्राइलैटरल हाईवे के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, मणिपुर से जाएगा टू थाईलैंड वाया म्यांमार, ये तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट में गलत कहां चला गया? चियांग माई थाईलैंड के बिल्कुल नदन एज पर है। और जब आप इस पर्टिकुलर ट्राइलैटरल हाईवे की बात करते हैं तो एक प्लेस है जिसका नाम है माईसौत, ये बेसिकली एकदम म्यांमार के बॉर्डर पर टच करता है, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड में है, उससे रिलेट करता है। अगर इस स्टेटमेंट में चियांग माई नहीं लिखा होता, खाली म्यांमार थाईलैंड टू म्यांमार, मणिपुर म्यांमार से थाईलैंड होता, तो शायद हम इसको करेक्ट टिक कर सकते थे, अदरवाइज नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है बांग्लादेश इंडिया चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश टू कुनमिंग, कुनमिंग ऑफ चाइना करेक्ट है, वाराणसी गलत है, कोलकाता को कनेक्ट करता है, इसका भी आंसर हो गया नन।
तो मेरे विचार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आनी चाहिए तो स्टेटमेंट नंबर 2 में आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक स्पेसिफिक सेंटर के बारे में बात कर दिया ऑफ थाईलैंड। अदरवाइज ये बहुत आराम से आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेन प्रिपरेशन से भी डिराइव आउट हो सकता है। ओके, अब इससे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा टर्न आउट करना पड़ेगा पेजेस को टू गेट ऑन टू इट। सो आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 63, वी आर डीलिंग अप विद सेट नंबर डी। चलो 63 पर पहुंचते हैं। 63 के क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन मार्केट्स की बात हो रही है। प्लीज रिकॉल कोयोटो प्रोटोकॉल। Kyoto Protocol that is being now supplemented as Paris Accord. It was Kyoto Protocol Commitment Period 1 that talked about the carbon market. CDM CER से related question. Carbon markets are likely to be one of the most widespread tool to fight against climate change. बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं। कार्बन मार्केट ट्रांसफर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, ये तो गलत है ना, क्योंकि कार्बन मार्केट्स का बेसिक पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। इसका बेसिक पॉइंट क्या है? इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द कंट्रीज दैट आर अल्टीमेटली नॉट बिकमिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ कार्बन ट्रेडिंग बाय रोपिंग इन TEEB एंड REDD+। अगर इन चीजों को लेकर देखें तो स्टेटमेंट 2 जो है वो अपने आप में जस्टिफाई नहीं कर पाता, गलत हो जाता है। इसलिए हम इसका आंसर लेते हैं सी। Second statement is wrong. Carbon market is not the transfer of resources from private sector to state. Carbon market is to enhance on carbon trading to ultimately fulfill the objective of minimizing the carbon concentration in atmosphere. That is how the answer should be taken up into account. Okay, अब इसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। बहुत लेंदी लुकिंग क्वेश्चन है, बट मेरे ख्याल से काफी आसान सा क्वेश्चन है। हार्डकोर ज्योग्राफी तो नहीं है, बट मैनेजेबल है। Which of the following is best describing the concept of small farmer, large field? B. Many marginal farmers in an area organize themselves into group and synchronize and harmonize selected agricultural operation. It is more on the lines of what we call cooperative farming, and I think it goes very well there. अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। ये कह रहा है नाइजर येलो रेवोल्यूशन को याद करो आप सब। हम सब ने येलो रेवोल्यूशन को इंडिया के कृषि उन्नति योजना में नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम के कंसिडरेशन में पढ़ा था। इसी के कंसिडरेशन में ये वाला स्टेटमेंट है that government of India provides minimum support price to Niger. Of course, when I talk about Niger as kharif crop, this is also correct. And some tribal people in India use Niger seed for cooking, क्योंकि Niger को हम normally non-edible में include करते हैं। Yes, the tribal people in peninsular India use it. So it is all the three that are correct. So for this question, we have got C as our answer. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलेंगे। की यूटिलाइजेशन का एक बड़ा बेसिक सा लॉजिक है, उसी को अगर आप जज कर लो तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से बात हो जाता है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंडिया डिस्पाइट ऑफ हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। आज की डेट में भी हम नहीं करके भी 60% प्लस ऑफ कमर्शियल एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हुआ करेक्ट। यूरेनियम एनरिचमेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, ये हो गया ब्लंडर वाला स्टेटमेंट। यूरेनियम एनरिचमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैक्सिमम आप 5% से ज्यादा नहीं ले जाते। आप जब वेपन्स के डेवलपमेंट करते हो देन द न्यूक्लियर एनरिचमेंट इज हाई। तो मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 गलत है। सी शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 72 आया एनवायरमेंट इकोलॉजी से। मार्सुपियल्स बहुत आराम से देखा है हमने। Marsupials are not naturally found in India. बिल्कुल सही। Marsupials are those organisms that have got their pouches to keep their young ones. Kangaroos, koalas are very good example, and you all are aware of the fact that they go with what is called Notogaea realm that is going with Australia and New Zealand. Marsupials can thrive only in montane grasslands with no predator. गलत है, क्योंकि जैसे ही हम कैंगरूज की बात करते हैं तो मोन्टेन हैबिटेट में थोड़ी ना रहते हैं। कैंगरूज का हैबिटेट तो सवाना है। I do agree कि we do have got some marsupial variants in Indian Cordilleras of South America, but फिर यहाँ पर ये कहना can thrive only, ये जो statement आ रहा है ना only, ये जो statement में ये जो term है, that makes it incorrect. So I go for C as the answer to this particular question. इसके आगे बढ़ेंगे तो environment ecology के कुछ questions मुझे दोबारा मिलते हैं। Quickly turning on the page, I am on question number 73. 73 question में invasive species specialty group, specialist group. I don't think there should be any debate to it.
falls into the domain of IUCN. IUCN ही तो आपको बता रहा है ना, रेड बुक, IUCN ही तो थ्रेट ऑफ स्पीशीज बताता है। IUCN के डोमेन में ही तो CBD ने हिप को डिमार्केट किया है, जिसमें वी टेक इनटू रेफरेंस इन्वेजिव एलियन स्पेसिमेन एज वेल, सो ऑटोमेटिकली वो IUCN के डोमेन में ही आना चाहिए। अच्छा, हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले, उसी से कुछ रिलेटेड स्पेसिमेंस आ गए यहाँ पर, मेरे ख्याल से आपने मैनेज करा होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉक्टर्नल। अच्छा, अगर यहाँ टर्म सिर्फ नॉक्टर्नल रहता तो हमारा चॉइस मालाबार शिविट रहता, क्योंकि ये बोल रहा है नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, इसलिए हम सांबर डियर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। सांबर डियर इज वन ऑफ द मोस्ट ओमनी प्रेजेंट इन द ड्रायर हैबिटेट ऑफ आवर कंट्री, और इनकी एक्टिविटी जो है वो सनसेट के बाद ही ज्यादा होती है, नॉक्टर्नल शिविट है। और जो लायन टेल्ड मैक्विक है ये बिल्कुल ही डे टाइम ड्वेलर्स है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर में आपको ओनली 2 पिकअप करना चाहिए, दैट इज गिविंग यू द रेफरेंस ऑफ which type of adaptation these scholars, these specimen have. Do understand, अगर सिर्फ नॉक्टर्नल लिखा होता तो मालाबार शिविट को आंसर होना चाहिए था। इसके बाद आता है जो एपीकल्चर से आप अपना नॉलेज डाल सकते हो। Which of the following organism waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance of source from the food? It is honeybees. एपीकल्चर का सारा डोमेन कोरिलेट करता है अंडरस्टैंडिंग द जूओलॉजी ऑफ honeybees, and not as hardcore environmental question. I'll say it is something which is related to rainbow revolution. With honeybee culture, we can easily apply on this particular answer. Next question थोड़ा सा factual है, but to some extent we can correlate to environment ecology. हम normally plants के लिए कहते हैं they are phototrophs, they are primary producers, they are self feeders and etc. Mushrooms are the examples of the plants that don't produce food, energy and matter for them. They are not green, they don't have chlorophyll. So उसी consideration में अगर आप ले लो तो mushrooms की ये चारों characteristics जो हैं वो correct है। We do have got mushrooms with medicinal value. We do have got characteristics of it with different orientation of psychoactive properties. It do gives me some of the insecticidal property. So it is having its association with all the 4 given choices. 76 का आंसर D जाएगा। अच्छा, इंडियन स्क्विरल के बारे में क्वेश्चन पूछा है। दे बिल्ट नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन ग्राउंड। नहीं, स्क्विरल्स अपना नेस्ट बनाती हैं ट्रीज पर, ये हो गया गलत। They store their food material, nuts and seeds on ground. This is correct. They hide their food stuff. और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जाता है इनके पास कि कई बार वो अपना हिडन फूड स्टफ को ही नहीं खुद ही निकाल पाती, but they do it. And they are omnivorous. Omnivorous इसलिए भी कहा जाता है because they do consume eggs, and they definitely do feed on some of the varieties of amphibians. Otherwise largely nuts and fruits पर ये correlate करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाना चाहिए 2, because we find 2 statements to be correct. Environment ecology का क्वेश्चन है, so ज्यादा इसमें कोई debatable point नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, we are almost done with it. Microorganisms के बारे में लिखा हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिया है। Can grow in environment with temperature above boiling point of water, बिल्कुल सही है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर टेम्परेचर मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वी डू हैव गॉट देम इन द आर्कटिक और द फ्रोजन लोकेशन, एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप इन हाई एसिडिक एनवायरमेंट विद pH बिलो 3. Of course, we can have it with the high acidic environment relating to the leach letterized domain. All of them. C will be the answer. 79. मेरे ख्याल से यहाँ पर नॉलेज से ज्यादा थोड़ा सा अवेयरनेस रिक्वायर्ड है। Which of the following makes tool with a stick to scrape insect from whole of the tree? अगर टूल बनाने की कैपेसिटी देखोगे तो उसी के साथ देख सकते हो जिसका ज्यादा एसोसिएशन होगा in the capacity of using the hand like humans use. So it actually goes with apes, और यहाँ पर मेरे पास variety by default आ गई है with the reference very clearly of orangutans. So you can easily take up the reference of orangutan as the example relating to this particular question. So ये आपका एक अच्छा example बन जाता है कि हम apes को एक general assessment में ले लें और we can take it up as orangutan as per the choice given.
ओके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स किगाली अरेंजमेंट के बारे में आप सब जानते हो। HCFCs को हम इंटरिम सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज करते हैं CFCs के लिए, और HCFCs का इस्तेमाल इन चारों चीजों के लिए किया जाता है। बिल्कुल थ्रो अवे मार्क्स क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। और इसके बाद मेरे ख्याल से सिर्फ एक और क्वेश्चन है जिसको हम ज्योग्राफी के साथ को रिलेट कर सकते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी के साथ। सो आई क्विकली स्क्रॉल ऑन टू दैट क्वेश्चन। इट इज क्वेश्चन नंबर 98। ये कम्युनिटी रिजर्व से है। PIB प्रेस रिलीज में हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये मुझे बहुत क्लियरली सिर्फ ये बता रहा है कि कम्युनिटी रिजर्व्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स जस्टिफाइड होते हैं। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के। सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस, इसका ओरिजिनल वर्जन तो 1990 है, और इसका 2002 के मॉडिफिकेशन के हिसाब से जब आप इन स्टेटमेंट्स को देखते हो, आपको दो स्टेटमेंट करेक्ट दिखाई देते हैं, बिकॉज व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ कम्युनिटी रिजर्व्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वी टेक अप द अकाउंट ऑफ चीफ वार्डन इज द गवर्निंग अथॉरिटी, बिल्कुल सही। Hunting is not allowed in such area, truly. Are allowed to collect non-timber forest product, nahi. And people are allowed to practice traditional practices, nahi. So it's only two that will be correct. So B will be the answer. This is what I wanted to discuss. Do have the reference of this, and then chat out with the other questions and the keys, and then relax, take time, and then get on to the preparation of your main. क्वेश्चन का ट्रेंड डिफरेंट है, बट ये कहीं पर भी मेरिट लिस्ट को ज्यादा डाउन नहीं जाने देगा। तो ये वाला मिथ अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना कि मेरिट बहुत लो चली जाएगी। क्वेश्चन डेफिनेटली अनकन्वेंशनल थे, टेकिंग ऑन द लास्ट 10 years or so of the trend of prelims. Bye bye from my side. Happy learning.